بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، ہماری اس دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں کچھ ایسے گناہ کرتے ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ گناہ کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ فخر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوں یا سوچیں کہ ہم نے کیا خطا کی ہے، کیا زیادتی کی ہے، کیا ظلم کیا ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو، ان گنہگاروں کو صرف ایک محدود حد تک نہیں، اگر زیادہ انسان ان گناہوں میں ملوث ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت جلدی آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں انسان کو بہت جلدی دیتے ہیں، حالانکہ ان گناہوں کی سزا آخرت میں بھی ملنے والی ہوتی ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہم احساس کرتے نہیں ہیں، ہمیں سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ ہم کن گناہوں میں ملوث ہیں۔ معمولی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خنزیر کھانا، شراب پینا، شرک کرنا، جادو کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گناہ ہیں جو انہی گناہوں کے برابر ہیں، انہی گناہوں کے برابر ہیں، ان گناہوں سے بدتر ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ان گناہوں کا احساس نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے خبردار کیا ہے۔ ناظرین، میری بات کو غور سے سننا اور اس کلپ کو، اس میسج کو آخر تک سننا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی رہنمائی ہو جائے، کسی کو توبہ کا موقع ملے، کسی کو خیر خواہی کا موقع ملے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کسی نہ کسی کو اللہ تعالی ہدایت دے اور وہ شخص اس گناہ سے باز آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہ ایسے جو ہم سرزد کرتے ہیں ان کے متعلق خبردار کیا۔ اس روایت کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، ابن حبان نے اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے۔ ارشاد گرامی ہے، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ کوئی ایسا دوسرا گناہ نہیں جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں بہت جلد دے دیتے ہیں، حالانکہ آخرت میں بھی اس گناہوں کی سزا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں دو گناہوں کے متعلق خبردار کیا ہے جو کہ تقریباً ہمارے معاشرے میں ارد گرد سبھی کے سبھی لوگ اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم میں یہ خامی ہے، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، عالم ہیں، غیر عالم ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دو گناہ اور یہ کبیرہ گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تعالی دنیا میں بہت جلد دیتے ہیں۔ ان يعجل اللہ لصاحبہ، یہ گناہ کرنے والے شخص کو اللہ تعالی سزا دنیا میں بہت جلد دیتے ہیں، حالانکہ آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ البغی، ظلم۔ پہلا گناہ ظلم۔
हालांकि इन शिरक लजुल्मुन अजीम, शिरक अल्लाह के साथ शिरक करना सबसे बड़ा जुल्म है, लेकिन इसके मुताल्लिक ये नहीं फरमाया। हालांकि शिरक की सजा अबदी है आखिरत में, लेकिन वो जुल्म जो एक इंसान इंसान पे करता है, जो रिश्तेदार रिश्तेदार पे करता है, जो दोस्त दोस्त पे करता है, जो पड़ोसी पड़ोसी पे करता है, यानी इंसान इंसानियत को भूलकर हैवानियत पे उतर आता है, नाइंसाफी करता है, लेन देन में खयानत करता है, नाप तोल में खयानत करता है, ये जुल्म अलबगी, एक दूसरे पर जुल्म। जब ये जुल्म होता है तो बरकत उठ जाती है। अगर बरकत उठ जाए तो क्या यह सजा नहीं? अगर लेन देन, नाप तोल और दीगर मामलात में जुल्म है, ना इंसाफी है, तो बरकत उठ जाए रिज़्क़ में, अमल में, नेकी में, तो इससे बड़ी क्या सजा हो सकती है? अल्लाह अपनी रहमत दूर कर देते हैं, अल्लाह अपनी रहमत को रोक लेते हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह को जालिमों से नफरत है। और फिर जब जुल्म एक हद तक चला जाता है तो फिर बीमारियां शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं, इंसान बीमारियों में उलझ जाते हैं और अखलाकियात गिर जाती हैं। इंसान की आजमत बहुत बड़ी है, लेकिन जब इंसान जुल्म के रास्ते पे चल पड़ता है तो फिर उसकी अखलाकियात, उसके आदाब खत्म हो जाते हैं, इंसानियत हैवानियत की तरफ चलना शुरू कर देती है, और फिर आहिस्ता 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 ये इंसानी मुआशरा हैवानियत की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें बड़े छोटे, अपने दूसरे, गरीब अमीर, और इस किसी को किसी की कोई खबर नहीं। और फिर रब की लाठी बेआवाज होकर बरसती है और बरसती है, दिन रात बरसती है। ये जुल्म, इसकी सजा इंसान दुनिया में भुगत रहा है, हुक्मरान हो या अवाम हो। और दूसरा कबीरा गुनाह कतिअतुर रहम, रिश्ते नाते तोड़ना, और खास तौर पे रिश्तेदारों के साथ, अपने खास रिश्तेदारों के साथ, अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ। इसीलिए इसको कतिअतुर रहम कहते हैं। वो रिश्ते जो रहम के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो रिश्ते जिनका इंसान का खूनी ताल्लुक है, उनकी परवाह न करना, खुद को बड़ा समझ के उनको नीचा समझ के। अच्छा, अब ये क्या है? यानी रिश्ते नाते तोड़ने का क्या मतलब है? हम ये समझते हैं कि किसी से सलाम नहीं लिया, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा, या किसी को मिलने नहीं गया तो समझे कि ये शायद इससे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। रिश्ते नाते तोड़ने का मतलब ये है कि अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और ताल्लुक वाले साथियों के साथ, ताल्लुक वाले दोस्तों के साथ नेकी ना करना, अदमुल इहसान, किसी को फेवर नहीं करना, किसी को हेल्प नहीं देनी, किसी की मदद नहीं करनी, किसी रिश्तेदार के साथ नेकी नहीं करनी, व इसाअतु इलैहिम, और उनके साथ बुरा करना। ये है रिश्ते नाते तोड़ने का मतलब। हम ये समझते हैं कि अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा तो शायद के रिश्ता नाता टूट गया। नहीं, मतलब ये है कि अस्सलाम वालेकुम ये तो एक अदना सा ताल्लुक है। रिश्ते नाते कायम करने का मतलब है कि आप रिश्तेदारों की मदद करें, उनकी गमी खुशी में उनका सहारा बने, कोई भी बुरा काम, कोई भी बुराई उनसे न करें, उनका दिल नहीं दुखाएं। और अगर ऐसा हुआ और रिश्तेदारी ये कहती है मन क़त्तअनी और मन क़तअनी क़त्तअहुल्लाह, अगर तुम रिश्तेदारी तोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारे टुकड़े कर देगा, अल्लाह तुम्हें टुकड़ों में तकसीम कर देगा, और अल्लाह तुम्हारा रेजा रेजा कर देगा। क़त्तअहुल्लाह। और रिश्तेदारी तोड़ने वाला शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। यह कबीरा गुनाह है जिसका एहसास नहीं है। और अगली बात सुनिए, यह हदीस सही है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखिए अब मेरी और आपकी नमाजें उड़ने वाली हैं, मेरे और आपके हज उम्रे और ये सदका और खैरात और ये चीजें रद्द होने वाली हैं। कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुमेरात के दिन हमारे अमाल, जो कि कुछ भी नहीं, हमारे अमाल अल्लाह के यहां पेश किए जाते हैं। तो उरदु अलल्लाह सुब्हानहु व तआला कुल्ल खमीस, हर जुमेरात को हमारे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, जिसमें नमाजें हैं, सदका खैरात है, रोज़े हैं, कुरान की तिलावत है, उसमें हमारे हज है, उम्रे हैं, क्या क्या है। लेकिन अल्लाह ताला ये कह के हमारे गुनाहों को रद्द कर देते हैं, फला युक़बलु अमल क़ातिअ रहम, कि वो शख्स जो रिश्ते नाते तोड़ चुका है, तोड़ रहा है, तोड़ने वाला है, उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। फला युक़बलु अमल क़ातिअ रहम। कहां कहां गई हमारी इबादत? क्या हमें इसकी खबर है? हम इस पे फख्र कर रहे हैं कि मैं मस्जिद जाता हूं, वुजू किया है, नमाज पढ़ी है, खैरात की है, रोजे रखे हैं, ईद पढ़ी है, जुमा पढ़ा है, नफल पढ़े हैं, तहज्जुद पढ़ी है, लेकिन वो रिश्तेदारी जो तोड़ी है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। इसका खुलासा ये देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जालिम और रिश्ते तोड़ने वाला शख्स, इनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में शख्स को बहुत जल्दी दे देते हैं, और रिश्ते नाते तोड़ने वाले शख्स की कोई इबादत कबूल नहीं होती है। ला यदखुलु अल जन्नत कातिअ। मेरे भाई और बहनों, इस पे गौर करो, तफक्कुर करो। मैसेज, ये पैगाम अगरचे लंबा हो गया है, आपको सुनने में दिक्कत हुई है, लेकिन इस पे गौर करें कि हम कहां खड़े हैं अपने अमाल के साथ, अल्लाह के हुजूर, अपने रिश्तेदारों के साथ, कि हमारे रिश्तेदार हमारा गिरेबान पकड़े हुए हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सर झुका के जीने और अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत, खुलूस, तावन की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।